कि मेरे प्यारे भाइयों से अनुरोध है कि वो पीछे की जगह ग्रहण करें। हम लो, हम लोग और अतिथि एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
people who are not from media are kindly requested to leave the media enclosure, please. It's a gentle request to non-media people seating in media enclosure to vacate the seats, please.
Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji will dedicate ONGC Petro Additions Limited Opal plant to the nation in a short while. He is expected to be here with the other dignitaries very soon. I request all of you to kindly be seated. The plant will be dedicated to the nation by the Prime Minister Shri Narendra Modi ji in the august presence of Gujarat's Chief Minister Shri Vijayabhai Rupani, Union Minister for Road Transport and Highways Shri Nitin Gadkari ji, Minister of State for Chemicals and Fertilizers Shri Mansukh Mandavia, along with a host of other dignitaries. Opal is a joint venture company promoted by ONGC, GAIL and GSPC, implementing a grassroots integrated petrochemical complex located in the Special Economic Zone SEZ under Petroleum, Chemical and Petrochemical Investment Region at Dahej. The company was incorporated on 15th November 2006. This is the single largest petrochemical plant in India and at full capacity will annually produce 14 lakhs metric tons of polymers and 5 lakh metric tons of chemicals. The product warehouse largest in India. Set up with an investment of rupees 30,000 crore, the plant is strategically located in the petrochemicals and chemical hub of country with excellent connectivity, creating an integrated ecosystem. It will generate direct employments for 3,500 personnel and indirect employment for around 10,500 people. The project will further result in the growth of new downstream plastic processing industries in the country, generating further investment of rupees 40,000 crore and over 20,000 indirect employment opportunities, giving major thrust to government's Make in India program. The increased use of polymers will also reduce burden on traditional materials like wood, paper, metal, etc., and will help in conserving natural resources like water and energy and promote food safety and food conservation. Opal's projected market share in the polymer sector will be 13% by 2018. The company would also contribute in encouraging polymer consumption in the country, and its products will be used for important sectors like infrastructure, housing, packaging, irrigation, automotive, healthcare, etc. Opal's production of polymer will help country towards the self-sufficiency. The petrochemical sector in the country has witnessed a robust growth of 10 to 12% per annum in the last decade and is expected to grow at the rate of 12 to 15% in the next decade.
नमस्कार, स्वागत है आपका गुजरात के दहेज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन दहेज में हो चुका है। ओएनजीसी के पेट्रो एडिशंस लिमिटेड यानी कि ओपल के मेगा पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट जो कि दहेज में है, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं। ओएनजीसी के इस पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो 508 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का ये गुजरात का दौरा है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये गुजरात का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है। कुल मिलाकर जो फोकस है इस यात्रा का, जो 2 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, इस बात को प्राथमिकता दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ नितिन गडकरी जी जो कि रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओपल की सीपीआर यूनिट में पहुंच चुके हैं और इस यूनिट में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से पेट्रोकेमिकल का जो तमाम जो काम होता है, चाहे वो पॉलीमर्स का निर्माण हो, चाहे फिर पेट्रोकेमिकल्स का निर्माण हो, वो किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से बताया जाएगा कि किस तरह से ये तकनीक, किस तरह से टेक्नोलॉजी चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दहेज में यहाँ पहुँच चुके हैं और ओपल जो कि सिंगल लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है भारत का, ओपल की अगर बात की जाए तो पेट्रोकेमिकल और पॉलीमर्स क्षेत्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी इस ओपल के प्लांट के बाद में। पेट्रोकेमिकल सेक्टर जो है, इसमें हम लोग नाफ्ता और हायर फ्रैक्शन ऑफ गैस के जो होते हैं, इथेन, प्रोपेन, उनको हम एज फीड स्टॉक यूज़ करते हैं और ये जो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था के जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं उसमें इनपुट्स के हिसाब से काम करते हैं। और सर इसकी जो डाउन स्ट्रीम है वो बहुत ही लेबर इंटेंसिव है, तो यहाँ बहुत सारा रोजगार का भी सर्जन होता है, प्लस मूल्य संवर्धन की जो संभावना इसमें है सर वो असीमित है। नेक्स्ट सर, इंडियन सिनारियो की अगर हम बात करें सर, तो ऑलमोस्ट 30% जो हमारी पॉलीमर की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग आयात करते हैं। इसके साथ सर अगर हम बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति जो कंजम्पशन है पर ईयर वो 10 किलोग्राम है, जबकि विश्व की जो एवरेज है वो 32 किलो है। सर हमारे यहाँ भारत में जो मध्यम वर्ग की साइज़ बढ़ रही है, इसके अलावा जो हायर डिस्पोजेबल इनकम है और शहरीकरण, ये हमारे ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। इससे हमारा पॉलीमर मार्केट को एक गति मिलती है सर हाइड्रोकार्बन चेन में एनर्जी में जो है वैल्यू एडिशन कम होता है सर, पर उसके जो नाफ्था या C2, C3 की बात करें तो पॉलीमर्स में जब हम जाते हैं, पेट्रोकेमिकल्स में जाते हैं, तो वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा होता है, मूल्य संवर्धन होता है सर। और इसका जो डाउन स्ट्रीम है वहाँ रोजगार की तकों का भी सर्जन होता है सर। जैसे कि हमने देखा कि हम 30% पॉलीमर आयात करते हैं, तो इस प्लांट के आने के बाद वो आयात भी कम होगा और फॉरेन एक्सचेंज में सर
काफ़ी सेविंग्स होगी। सर ओपाल जो है ONGC, गेल और GSPC की एक संयुक्त उपक्रम है और ये 15 नवंबर 2006 को इनकॉर्पोरेट किया गया था। सर इसके सारे यूनिट्स जो हैं, सारे यूनिट्स अभी तक कमीशन हो चुके हैं सर, और जो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में गया है सर, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उसको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मार्केट में मिला है। सर हमारा जो विज़न है वो है वर्ल्ड क्लास पेट्रोकेमिकल कंपनी बनने का और वैल्यू और क्वालिटी इन दो में जो हमारे ग्राहक है उनकी प्रिफर्ड चॉइस बनने का। सर दहेज का जो लोकेशन है ये बहुत ही एडवांटेजियस है क्योंकि इसके 200 किलोमीटर दोनों तरफ ऊपर नीचे हम देखें तो पूरा इंडस्ट्रियल जोन है और इसकी जो डाउन स्ट्रीम है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा साउथ गुजरात और भरूच और अहमदाबाद में है। प्लस सर इसके लोकेशन के चलते यहाँ पे जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट की संभावना है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ के प्रोडक्ट जब मार्केट में आएंगे तब एक डाउन स्ट्रीम में एक क्रांति जैसा एक वातावरण बनेगा सर। नेक्स्ट प्लीज। सर ये सिंगल लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है और वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है सर, और ये दहेज के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। प्लस गुजरात का जो हमारा PCPIR है उसका ये एंकर टेनेंट है। इसका सर टोटल एरिया है जो 5 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। टोटल जो इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है सर वो 30,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है और इससे हमारे यहाँ अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलाकर 14,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सर हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें पॉलीमर्स 14 लाख टन हर साल बनेगा और जो केमिकल्स बनेंगे वो 5 लाख टन बनेंगे। जो एवरेज टर्नओवर होगा सर, जो हमारा प्रोजेक्शन है वो है 16,000 करोड़ रुपए का। सर यहाँ का जो पॉलीमर वेयरहाउस है दैट इज द लार्जेस्ट इन द कंट्री। प्लस इसके लोकेशनल एडवांटेज, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी और यहाँ का स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है सर। कुछ जो हमारे लाइसेंसर्स हैं वो पहली बार इंडिया में उन्होंने प्लांट लगाया है। सर ये प्रोसेस अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो रीच LNG में से C2 C3 एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो हमारे डुअल फीड क्रैकर में आता है सर। इसी तरह से ONGC का कैप्टिव फीड है सर नाफ्ता, वो उरान और हजीरा प्लांट से हमारे यहाँ आता है। इसके बाद क्रैकर में इसका प्रोसेस करने के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, ब्यूटेडीन, बेंजीन, पाइगेस वगैरह यहाँ के प्रोडक्ट है सर। नेक्स्ट प्लीज। सर एनुअल प्रोडक्शन जो है यहाँ का 19 लाख टन के आसपास होगा और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा होगा वो HDPE और LLDP का होगा 1060 और उसके अलावा PP 340 और बाकी सर 5 लाख टन जो है वो केमिकल्स होंगे जिसमें मेनली बेंजीन और पाइगेस होगा सर। सर ओपाल का जो प्रोजेक्शन है जब ये फुल कैपेसिटी पे काम करेगा 2018 सन में तो जो हमारे कंट्री का जो पॉलीमर मार्केट है उसका 13%, इसका मतलब 1/7 ऑफ द पॉलीमर्स विल बी प्रोड्यूस इन दिस प्लांट सर। सर पॉलीमर्स का एक मदर इंडस्ट्री जैसा रहता है सर। जो इंडस्ट्री के बहुत सारे सेक्टर्स हैं, चाहे हम गृह निर्माण की बात करें, चाहे हम ढांचागत व्यवस्था की बात करें, चाहे हम कृषि की बात करें, सिंचाई की बात करें, इन सब में इसका उपयोग होता है। ऑटोमेटिव पार्ट्स, कंज्यूमर गुड्स, पैकेजिंग, जियो टेक्सटाइल्स, इन सब में हमारा PP है, PE है, ये सब उसमें जाता है सर। सर जो केमिकल्स हमारे यहाँ बनेंगे, जो पाइगेस होता है सर उसको पेट्रोल में ब्लेंड किया जाता है गैसोलीन में। बेंजीन एक इंटरमीडिएट केमिकल है जिससे अल्टीमेटली फिनॉल और दूसरे केमिकल्स बनते हैं सर। और ब्यूटेडीन जो हमारे आजकल कंज्यूमर गुड्स आते हैं सर उसमें बहुत सारा ABS जो यूज़ होता है वो ब्यूटेडीन से बनता है। और CBFS मेनली सर टायर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। नेक्स्ट सर जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मटीरियल हैं, चाहे वो धातु हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे पेपर हो, ये जो पॉलीमर्स है उसको रिप्लेसमेंट करने का काम करते हैं। और पॉलीमर के प्रोडक्शन की अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो एनर्जी और वाटर कंजर्वेशन सबसे ज़्यादा पॉलीमर प्रोडक्शन में होता है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मटेरियल। और सर जो हाइड्रोकार्बन की वैल्यू चेन है उसको अगर हमको रियलाइज करना है मैक्सिमम, तो पेट्रोकेमिकल इज वन वे बाय विच वी कैन रियलाइज द हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन। इसके अलावा सर इंपोर्ट पे बर्डन कम होगा और जो हमारा भारत का पॉलीमर मार्केट है सर उसको इस ओपाल प्लांट के आने के बाद हमारी जो आत्मनिर्भरता है पॉलीमर में उसकी तरफ हम एक बहुत ही बड़ा सार्थक कदम उठाएंगे। और इसके साथ जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम है, चाहे मेक इन इंडिया की बात हो, चाहे स्मार्ट सिटीज़ की बात हो, डिजिटल इंडिया की बात हो, स्वच्छ भारत की बात हो, उन सब में ये हमारे जो पॉलीमर्स हैं सर वो अपना योगदान देंगे। नेक्स्ट
सर ये कुछ फोटोग्राफ हैं सर। ये डुअल फीड क्रैकर यूनिट है, दिस इज कॉल्ड द मदर यूनिट। यहाँ ये सबसे बड़ा यूनिट है सर, और यहाँ पे गैस का और नाफ्ता का दोनों का क्रैकिंग यहीं पे होता है सर। ये पॉलीप्रोपिलीन यूनिट है जिसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ये प्रोपिलीन जब आता है उसको हम पॉलीमराइजेशन जब करते हैं तब पॉलीप्रोपिलीन बनता है सर। ये LLDP और HDP स्विंग यूनिट है, इसमें हम लोग थोड़ा वेरिएशन ला सकते हैं मार्केट को देखते हुए, या तो HDP मैक्सिमाइज कर सकते हैं या LLDP मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये सर HDP यूनिट का फोटोग्राफ है सर। सर ये ब्यूटीन 1 है, इसका उपयोग LLDP में एज को मोनोमर किया जाता है। इसका भी हमारे यहाँ कैप्टिव यूज होगा। कैप्टिव पावर प्लांट सर हमारे यहाँ है गैस बेस्ड। ये 195 मेगावाट पावर का उत्पादन करेगा जो यहाँ पे इन हाउस हम लोग यूज करेंगे सर। फ्लेयर सिस्टम हमारे यहाँ है। ऑफ साइट और टैंकेजेस की व्यवस्था है सर, ताकि कभी भी जो हमारी चेन है उसमें कभी भी कुछ रुकावट आती है तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकें और यहाँ हम उस सामान को रख सकें। कूलिंग टावर्स, सेंट्रल लेबोरेटरी है सर। ये हमारे यहाँ बहुत ही अद्यतन लेबोरेटरी है जहाँ हर तरह के टेस्ट वगैरह की सुविधा अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट वेयर हाउस है सर, जो मैंने बताया। इसमें हम लोग सर 80,000 मैट्रिक टन सामान रख सकते हैं, और ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लंबा है और 135 किलोमीटर चौड़ा है। नेक्स्ट सर, ओपाल की जो हमारी टैगलाइन है वो है ओपाल रीडिफाइनिंग द फ्यूचर। सर मैं इस मंच से आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम लोग ओपाल परिवार पॉलीमर क्षेत्र में और पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आपके नेतृत्व और सफल मार्गदर्शन के तहत एक नया और बहुत ही उन्नति और विकासशील भविष्य बनाएंगे। थैंक यू सो मच सर। हाँ, जस्ट नेक्स्ट सर, ये लाइव प्रोसेस आ रहा है सर। यहाँ पे जो हम लोग फीड ले रहे हैं C2 C3, ये सर पूरा डेटा यहाँ पे हम लाइव देखते हैं। ये 70 किलोमीटर की ऑप्टिक फाइबर लाइन लगी हुई है। और सर यहाँ का जो क्रैकर यूनिट है उसकी विशेषता ये है कि ये -180 डिग्री तक और प्लस 1100 डिग्री, मतलब 1300 डिग्री तक का इसमें वेरिएशन है सर। और ये क्या प्रोसेस हो रहा है, हर टन प्रति आवर क्या फीड जा रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, उससे प्रोडक्ट्स क्या निकल रहा है, every hour that data on real time basis it is available and everything is controlled from here sir। ये कंट्रोल रूम है सर। सर यहाँ आइए सर, आप यहाँ सर ऐसे करेंगे सर। प्लीज ऑल प्लीज कम ओवर फॉर अ फोटोग्राफ विद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी। प्लीज एक वहाँ खड़े हो जाए, वहाँ पे दोबारा ले लेंगे, एक यहाँ ले लेते हैं सर। सर आधे उधर रहे, एक बार उधर ले लेंगे। 3 कर दो ताकि अच्छा क्विकली प्लीज। थैंक यू सर। सदस्यों के लिए, कर्मचारियों के लिए ये बहुत ही बड़ा दिन है।
कुछ ही देर में यहाँ पर आ पहुँचेगा। दूरदर्शन की स्टेट चैनल डीडी गिरनार से इस पूरे प्रोग्राम का जीवंत प्रसारण हो रहा है। इसको आसान बनाया जा सके, सस्ता बनाया जा सके इस तकनीक को, और जो पॉलीमर्स और पेट्रोकेमिकल्स हैं उनको किस तरह से हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं हाल में, उस इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करके भारत में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया सके। तो इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फोकस रहा है, और जो 2 दिन का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है यहाँ पे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर भी खास फोकस रखा जाएगा। गुजरात राज्य को अव्वल बनाने में सफल रहने के बाद अब जो देश की उन्नति, प्रगति और सर्वांगी विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, ऐसे हमारे अपने चहीते आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एवं अन्य महानुभावों का जोरदार तालियों से अभिवादन कर रहे हैं। Namaskar, good afternoon ladies and gentlemen, and a very, very warm welcome to all of you. The industry of oil and gas is one of the factors determining any country's economic growth and has a strong hold in world's economic too. With a vision to be a world-class petrochemical company with dominant Indian presence, ONGC Petro Additions Limited was incorporated as a joint venture of ONGC, GAIL and GSPC. Today, on the occasion of an industry meet at the single largest petrochemical complex, on behalf of OPAL, I extend a very warm welcome to the distinguished dignitaries on the dais, honorable guests, invitees, industrialists, contractors, licensors, buyers, partners, associates, and friends from press and media. We will commence by welcoming the dignitaries on the dais. सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, शिपिंग एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स श्री मनसुख भाई मांडविया से विनती है, आप समारंभ के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत अभिवादन करें। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय के सचिव श्री के.डी. त्रिपाठी से निवेदन है, आप गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। ओपाल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अविनाश जोशी से विनती है, आप हमारे अतिथि विशेष रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज शिपिंग विभाग के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें।
ओपाल के एमडी श्री अविनाश जोशी केंद्रीय राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी का भी फूलों से स्वागत करेंगे। धन्यवाद। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की परिकल्पना वाले वाइब्रेंट गुजरात की विकास गति को बनाए रखने और उसे और भी बढ़ाने की जिम्मेवारी जिन्होंने ली है, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी से निवेदन है आप प्रासंगिक उद्बोधन करें। माननीय मंत्री श्री विजय भाई रूपाणी। मंच पर उपस्थित हमारे देश के लोकप्रिय और विकास जिनका मंत्र है, ऐसे हमारे गुजरात के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय इंडियन मिनिस्टर रोड एंड ट्रांसपोर्ट शिपिंग आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय पेट्रोकेमिकल्स के मंत्री मनसुख भाई मांडविया, चीफ सेक्रेटरी जयंत सिंह, सेक्रेटरी पेट्रोलियम केडी त्रिपाठी, मैनेजिंग डायरेक्टर ओपेल अविनाश जोशी जी, सबसे पहले गुजरात की जनता की ओर से आज उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रचार इतने तेजी से जिन्होंने किया, बहुत सारी यानी कि हाईएस्ट जिन्होंने सभाएं और रैलियां की है, कल ही वो समाप्त हुआ और आज गुजरात के साथ उसका जो प्रेम है नरेंद्र भाई जी का, और आज कोई थकान नहीं और कोई यानी कि रेस्ट की बात नहीं, और तुरंत ही आज दूसरे ही दिन आप गुजरात आए हुए हैं। गुजरात की जनता की ओर से मैं हार्दिक आपका अभिवादन और स्वागत करता हूं। वैसे मंचस्थ गडकरी जी, मनसुख भाई, बाकी सभी लोगों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। 30,000 करोड़ की मूडी रोकाण, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन यानी कि PCPIR सेंटर और राज्य सरकार का संयुक्त प्रयासों से ये प्रोजेक्ट साकार हुआ है। और जब भी हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये प्रोजेक्ट चालू किया था, शुरू किया था, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई वो प्रोजेक्ट को जिन्होंने चालू किया था, वही नरेंद्र भाई आज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं और हमें इससे बड़ा गौरव है। पेट्रोकेमिकल्स इस विषय में गुजरात अग्रसर है और गुजरात ने बड़ी बड़ी रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, उनका इंडस्ट्रीज उद्योगों का यानी कि ग्रास रूट पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोल केमिकल कंपनी, गैस एक्सप्लोरेशन और गैस के वितरण में गुजरात ने बड़ी अग्रणी भूमिका निभाई है और PCPR क्षेत्र में भी गुजरात की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया है। दहेज भारत का प्रथम समर्पित केमिकल पोर्ट भी है और परिवहन और उनके उपयोगिता को उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है। नितिन गडकरी जी भी हमारे बीच में है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रोड, हाईवे, पोर्ट वो मंत्री है और उन्होंने भी अच्छा सहयोग दिया है। पेट्रोकेमिकल में गुजरात जो प्रोडक्शन होता है उसमें 60% वो गुजरात का शेयर है और MSME और आनुषंगिक एकमों में मेगा प्रोजेक्ट बिजनेस में भी गुजरात का एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट है और मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात के युवा वर्ग को उससे
बड़ी रोजी रोटी मिलेगी। और गुजरात एक मेक इन इंडिया आप प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट मेक इन गुजरात इसके लिए भी एक बड़ा आपने कदम उठाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी प्रोत्साहित किया है और इन्वेस्टरों के लिए भी ये सुविधा सभर है। आज एक विशेष बात का भी मैं उल्लेख कर रहा हूं कि आपने जिस तरीके से नीति बनाई, आपने जिस तरीके से परिश्रम किया, इसके कारण ये प्रोजेक्ट की शुरुआत दहेज एलएनजी टर्मिनल ओपेल 2004-05 में 5 मिलियन टन वाला प्रोजेक्ट था। वर्ष 2009-10 में उसकी क्षमता बढ़कर 10 मिलियन टन बढ़ाई गई और अक्टूबर 2016 में प्लांट की क्षमता फिर से 15 मिलियन टन तक बढ़ाई गई और अब प्लांट उसकी क्षमता 17.5 मिलियन टन उसकी हो गई है। प्लांट हाल में 100% कार्यक्षमता से काम कर रहा है, लेकिन 125% ज़्यादा वो प्लांट कार्यक्षम बन गया है। ये इस प्लांट से 40-40% गैस वो गुजरात में उनका वपराश, यानी कि वो गैस गुजरात में सप्लाई होता है और 4 राज्यों में अंतर्राज्यीय पाइपलाइन से ये जोड़ा गया है और गुजरात में से वो गैस वहाँ हम सफलतापूर्वक भेज रहे हैं। विश्व के एक सबसे बड़ा प्लांट एलएनजी प्लांट में से ये एक प्लांट है और गुजरात सरकार का विकासशील अभिगम, व्यवसाय लक्षी नीति, उसके कारण ये शक्य हुआ है और दहेज प्लांट की क्षमता 3 गुनी बढ़ी है और उससे गुजरात और अन्य राज्यों में भी गैस के व्यवसाय विकास में ये फलदायी है। ऐसा ही प्लांट कोची में एलएनजी टर्मिनल हो रहा, केरल में बन रहा है। 2007 में उनकी कंस्ट्रक्शन की काम शुरू हुआ, 2013 में वो चालू हुआ, लेकिन आज भी पाइपलाइन का काम बाकी है। 5 मिलियन टन की क्षमता वाला प्लांट 5%, सिर्फ उनमें से 5% उनका वपराश यानी कि उपयोगिता हो रही है। यूपीए सरकार द्वारा ये कोची में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। ये दोनों में कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं कि आपकी मार्गदर्शन से, आपका परिश्रम से गुजरात गवर्नमेंट ने एक विकास लक्षी अप्रोच से ये सफल बनाया है और ओपेल आज गुजरात के लिए एक बड़ी प्रतिष्ठा का एक पेट्रोकेमिकल एक क्षेत्र बना है और आज आप गुजरात में इस प्लांट को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आए हैं। फिर से मैं गुजरात की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री श्री। An initiative that is supporting government's flagship programs Make in India and Smart City Mission. An initiative which is fueling employment, growth and self-sufficiency. Now is the time to know more about the initiative OPAL through a film, OPAL at a Glance. ONGC Petro Additions Limited, OPAL, redefining the future. India faces a massive demand for polymers and petrochemicals, fueled by a robust economic growth. An ambitious dream was nurtured by the country's flagship oil and gas E&P company, ONGC, to add value to its naphtha by converting it into polymers. And what you witness today is the largest petrochemical complex of South Asia. The unique dual-feed cracker, the heart of the complex, runs on naphtha and C2C3. OPAL has the competitive advantage
of consistent supply of both these feedstocks committed by ONGC. The C2C3 extraction unit of ONGC is next door, while naphtha reaches OPaL through dedicated pipelines from ONGC's nearby Hazira complex. Built with an investment of 30,000 crore rupees, the facility integrates the world's best technologies, producing 1.9 million tons per annum of polymers and chemicals. Such large capacities will alter the polymer market dynamics by easing the supply positions and providing the customers with quality product options. The polymer products are being marketed under the brand names of Opaline PP, Opaline HDPE and Opaline LLDPE. The SEZ, where OPaL is located, is India's front-runner PCPIR and the fastest developing chemical cluster in the country. OPaL enjoys a strategic locational advantage of being well connected to major commercial centers by air, road, rail and sea. Today, OPaL generates a direct employment for nearly 1,000 employees and indirectly engages a manpower of around 20,000, mostly from the surrounding communities. As India gears up to take the Make in India initiative forward, OPaL's Made in India products will provide a tremendous boost to the nation's economy and give an impetus to the downstream industries. It is now all set to redefine the global petrochemicals landscape. OPaL, redefining the future. A man who gave greater direction to Indian economy than whatever was done in 67 years. A visionary, a courageous mentor for a well-developed India. A personality admired immensely within India and across the globe. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the sculptor of modern India, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I request Honorable Modi ji to kindly address the august audience. કેમ છો? गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, श्री मनसुख मांडविया जी और इसी क्षेत्र के सभी महानुभाव, उपस्थित सभी साथी, मुझे कहते हुए बड़ा आनंद आ रहा है कि हमारा दहेज एक प्रकार से लघु भारत बन गया है। शायद ही देश का कोई जिला ऐसा होगा कि जिसके लोग हमारे इस दहेज में रोजी रोटी न कमाते हो और यहाँ रह करके दूर सुदूर गांवों में अपने परिवारों की परवरिश न करते हो। भाइयों बहनों, पूरे देश में और विश्व में
सदियों से गुजरात की व्यापारिक सोच और साहसिकता, इसकी एक गूंज सब दूर सुनाई देती है। गुजरात की उस ऐतिहासिकता को उजागर करने में दहेज, भरूच, इस क्षेत्र ने भी अपना योगदान दिया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मेरी जिम्मेवारी थी तो अनेक बार इस क्षेत्र में मुझे आने का अवसर मिला, विकास के संबंध में विचार विमर्श करना, नई नई योजनाओं को आकार देना और उसको गति देना। तो मेरा एक निरंतर प्रयास, और इस जगह को मैंने ब्रिक बाय ब्रिक मजबूत होते और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुआ अपने आंखों से देखा है। पिछले 15 वर्षों में दहेज के विकास के लिए गुजरात सरकार ने भगीरथ प्रयास किए हैं। आज उसी का परिणाम है कि दहेज का पूरा इलाका औद्योगिक दृष्टि से न सिर्फ गुजरात में लेकिन हिंदुस्तान में एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। दोस्तों, ये गुजरात सरकार की लगातार कोशिशों का ही नतीजा था कि दहेज एसईजेड दुनिया के टॉप 50 औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी जगह बना पाया। ये भारत का पहला ऐसा औद्योगिक क्षेत्र था जिसने वर्ल्ड रैंकिंग में इतनी धमाकेदार अपनी एंट्री दर्ज की थी। 11-12 में तो दहेज एसईजेड की वर्ल्ड रैंकिंग 23rd थी, 23 नंबर पे हम पहुंच गए थे। आज भी दहेज एसईजेड विश्व के कुछ गिने चुने औद्योगिक क्षेत्रों में अपना विशेष स्थान रखता है, यानी एक प्रकार से इसकी ग्लोबल प्रेजेंस हो गई है। और किसी भी भारतवासी के लिए, किसी भी गुजराती के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये क्षेत्र सिर्फ गुजरात के नहीं, देश के लाखों नौजवानों को रोजगार देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब तक इस क्षेत्र में कुल मिलाकर के पूरे क्षेत्र में करीब 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हो चुका है। दहेज एसईजेड की शानदार कामयाबी के लिए मैं इससे जुड़े लोगों को, आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। दहेज और उसके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में गुजरात सरकार ने हमेशा गंभीरता दिखाई। इसी वजह से जब ये चर्चा शुरू हुई कि देश में 4 पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी पीसीपीआईआर बनाए जाएंगे, तो उसमें गुजरात के दहेज का नाम भी था। पीसीपीआईआर की वजह से 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है और इनमें से 32,000 तो ऐसे हैं जो सीधे इससे जुड़े हुए हैं। एक अनुमान है कि जब ये हमारा पीसीपीआईआर अपनी पूर्ण क्षमता पर जब विकसित होगा तो करीब करीब 8 लाख लोगों को
किसी न किसी तरीके से रोजगार देने की ताकत रखता होगा। पीसीपीआईआर की वजह से दहेज और भरूच के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत अच्छा विकास हुआ है। पेट्रोलियम, केमिकल, पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन की वजह से बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आई है। आज दहेज का एसईजेड पीसीपीआईआर और गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बहुत ही वाइब्रेंट औद्योगिक स्थल बन चुका है। एक ऐसे शिशु की तरह जिसे मैंने अपनी आंखों के सामने उसको फलता फूलता बढ़ता हुआ देखा है, और इसलिए इसके साथ मेरा भावात्मक लगाव होना बहुत स्वाभाविक है। दहेज एसईजेड और पीसीपीआईआर को 4 चांद लगा अगर किसी ने लगाए हैं तो वो है ओएनजीसी, पेट्रो एडिसन्स लिमिटेड यानी ओपेल, ओपेल यहां के लिए एक एंकर इंडस्ट्री की तरह है। यह देश का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट है। इस एक प्लांट में, मैं पूरे क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, इस एक प्लांट में 30,000 करोड़ रुपयों का निवेश, मैं समझता हूं कि यह अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और इतनी बड़ी अमाउंट लग चुकी है। साथियों, आज भारत में पॉलीमर्स का पर कैपिटा कंजम्पशन सिर्फ 10 किलो है, जबकि पूरे विश्व का औसत लगभग 32 किलो है। आज जब पूरे देश में मिडिल क्लास का दायरा बढ़ रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है, शहरों का विकास हो रहा है, तो निश्चित तौर पर पॉलीमर्स के पर कैपिटा कंजम्पशन में भी बहुत बढ़ोतरी की संभावना रहने वाली है। ओएनजीसी पेट्रो एडिसन्स लिमिटेड की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। पॉलीमर से जुड़े हुए प्रोडक्ट का इस्तेमाल कई अहम सेक्टरों में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, पैकेजिंग, इरिगेशन, ऑटोमेटिव, हेल्थ केयर, सब, यानी कोई भी नाम लीजिए, हर जगह पे उसकी मौजूदगी है। केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया और स्मार्ट सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्टों में भी ओपेल का बहुत बड़ा योगदान होगा। एक अनुमान है कि 2018 तक, 2018 तक, यानी एक साल के बाद, पॉलीमर्स में ओपेल की हिस्सेदारी लगभग 13% हो जाएगी। पॉलीमर्स का इस्तेमाल बढ़ने का सीधा मतलब है कि जो परंपरागत चीजें हैं, जैसे लकड़ी, कागज, लोहा, मेटल, इनका उपयोग कम होता जाएगा। यानी ये हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में सहायक सिद्ध होगा। देश में पेट्रोकेमिकल सेक्टर इस समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 2 दशक तक ये सेक्टर 12 से 15% की रफ्तार से बढ़ेगा, 12 to 15%। दोस्तों, भविष्य में इस क्षेत्र में और भी बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, जिसमें पोर्ट का आधुनिकीकरण, 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन,
एवं वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट इसकी योजना में है। निश्चित तौर पर इससे देश के लाखों नौजवानों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्रमिकों की सुविधा के लिए, जॉब मार्केट के विस्तार के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। उद्योगों में निवेश आकर्षित करने के साथ साथ कौशल विकास के लिए भी भगीरथ प्रयास किए जा रहे हैं। देश में पहली बार कौशल विकास मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाकर इस पर सुनियोजित तरीके से काम हो रहा है। सरकार वर्षों पुराने कानूनों को हटाकर या फिर उनमें आवश्यक बदलाव करके भी जॉब मार्केट का विस्तार कर रही है। अप्रेंटिसशिप एक्ट में सुधार करके अप्रेंटिसों की संख्या बढ़ाई गई और अप्रेंटिस के दौरान मिलने वाले भुगतान में भी बढ़ोतरी कर दी गई। 1948 के फैक्ट्री एक्ट में बदलाव करके राज्यों को सलाह दी गई है कि वे महिलाओं को रात्रि में काम करने के लिए सुविधा प्रदान करें। इसके अलावा पेड मैटरनिटी लीव को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया है। श्रमिकों की मेहनत की कमाई और बचत ईपीएफ अकाउंट में जमा होती है। ये राशि उन्हें कहीं भी कभी भी मिल सके, इसलिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर देने की शुरुआत की गई है। आपको जानकर के हैरानी होगी, जब मैं प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवारी ली तो सरकार के खजाने में करीब 40,000 करोड़ रुपया सड़ रहे थे। मैंने पूछा क्या है भाई? तो ये गरीब मजदूरों के पैसे थे, ईपीएफ में लिए गए, काटे गए। किसी का 200 होगा, किसी का 1000 होगा, किसी का 2000 होगा। बाद में उसने नौकरी छोड़ दी या ट्रांसफर हो गई, अब वो 200-500 रुपया लेने के लिए वापस कहां जाएगा? पड़े थे। हमने ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देकर के अब कोई भी मजदूर एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा तो वहां भी अपने उन पैसों को निकाल सकता है, उसका हक बना रहेगा और उन 40,000 करोड़ रुपयों को मजदूरों को खोज खोज करके वापस देने का काम चल रहा है। गरीब के लिए कैसे काम किया जा सकता है, ये इसमें देखा जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में जहां रोजगार बढ़ने की विशेष संभावना है, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर, मैं मानता हूं ये बहुत ही वाइब्रेंट सेक्टर है और उसके अनुरूप फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत श्रमिकों को रोजगार देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सामान्य दुकानें और संस्थान साल में पूरे 365 दिन खुले रह सके, उसके लिए भी राज्यों को एडवाइस दी गई है। आप हैरान होंगे, बड़े बड़े मॉल सैटरडे भी चले, संडे को भी चले, रात को 10 बजे भी चले, 12 बजे भी चले, लेकिन छोटा व्यापारी उसको कंपलसरी हफ्ते में एक दिन बंद रखो, शाम को 8 बजे के बाद बंद कर दो। मैं समझता नहीं हूं कि ऐसे कानून क्यों बनाए गए। हमने परिवर्तन किया है। छोटा व्यापारी भी अगर उसके पास समय है, बैठना चाहता है, एक आध आदमी को रोजगार देगा, भले रात को 12 बजे तक अपना काम चलाए, 7 दिन चलाए। तो सरकार ने परिवर्तन किए हैं ताकि हमारे पास एग्जिस्टिंग जो व्यवस्थाएं हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो और अधिकतम लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं पैदा हो। साथियों, 2014 में सरकार बनने से पहले देश के सामने किस तरह की आर्थिक चुनौतियां थी, ये आप सभी को भली भांति पता है। महंगाई बेकाबू थी। आपने देखा होगा पूरा अभी 4-5 राज्यों में चुनाव हुआ, सब पॉलिटिकल पार्टियां ना जो भी हम पर कह सकते थे कहते थे
लेकिन पूरे चुनाव अभियान में महंगाई को लेकर के इस सरकार पर कोई आरोप नहीं हुआ। अब ये ऐसे समाचार होते नहीं, इसलिए कोई लेता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि देश में इतना बड़ा चुनाव हुआ लेकिन किसी विरोधी ने भी महंगाई के मुद्दे पर चुनाव में चर्चा नहीं की। इसका मतलब कि बेकाबू जो महंगाई थी उसको रोकने में ये सरकार सफल हुई है। और भी प्रयास हमारे निरंतर चलते रहते हैं। भाइयों बहनों, देश में निवेश और निवेशकों दोनों का भरोसा घट रहा था। निवेश घटने के सीधे आसार इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर पड़ रहा था। लेकिन अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हर चुनौती को केंद्र सरकार ने सुलझाने का प्रयास किया। एक तरफ जहां पूरे विश्व में आशंका के बादल हैं, वहीं भारत एक वाइब्रेंट स्पॉट बनकर चमक रहा है। पिछले साल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत को वर्ष 2016 से 2018 के बीच दुनिया की टॉप 3 प्रोस्पेक्टिव होस्ट इकोनॉमी में अंकित किया गया है। वर्ष 2015-16 में $55.5 बिलियन यानी कि करीब करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड विदेशी निवेश एक कैलेंडर ईयर में हुआ है। यह किसी भी वित्तीय वर्ष में अब तक हुए निवेश से ज्यादा है। 2 वर्ष में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 32 स्थान ऊपर आया। इतना हम पीछे थे। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 2014 में 54वें स्थान पर था, 54। 2016 में भारत ने इस रैंकिंग में काफी सुधार करके हम 54 से 35 पर अब पहुंच गए हैं। मेक इन इंडिया आज भारत का सबसे बड़ा इनिशिएटिव बन चुका है। तमाम रेटिंग एजेंसियों ने इसकी कामयाबी की प्रशंसा की है। मेक इन इंडिया एक प्रयास है भारत को मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और इनोवेशन का ग्लोबल हब बनाने का। इसी मुहिम के चलते आज भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया है। 2 साल पहले भारत 9वें नंबर पर था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी अच्छी वृद्धि देखी गई है। इसका उदाहरण ग्रॉस वैल्यू एडिशन की विकास दर है। वर्ष 2012 से 15 के बीच करीब 5-6% के आगे पीछे हम रहते थे। पिछले साल ये बढ़कर के 9.3% तक पहुंच गई है। 9 से ज्यादा प्रतिशत पहुंच गई है। आज भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश हो गया है। पोर्ट लेड डेवलपमेंट सरकार की प्राथमिकता है। सागरमाला योजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। हमारे नितिन गडकरी जी उस कार्य को देख रहे हैं। पोर्ट्स का आधुनिकीकरण, नए पोर्ट्स का निर्माण, कनेक्टिविटी के सुधार पर बल, पोर्ट लेड औद्योगिकरण और कोस्टल कम्युनिटी के विकास की
यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। 8 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट वाले 400 से अधिक प्रोजेक्ट्स का चयन किया जा चुका है और 1 लाख करोड़ के लगभग के प्रोजेक्ट क्रियान्वयन के अलग अलग चरणों में पहुंच चुके हैं। रेलवे और पोर्ट्स की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इंडियन पोर्ट रेल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। इस सरकार का नया इनिशिएटिव है। देश के विभिन्न हिस्सों में 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स प्रस्तावित हैं। गुजरात में 85,000 करोड़ की लागत से 85,000 करोड़ की लागत से 40 से अधिक प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए गए हैं। 5,000 करोड़ के लगभग प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। कांडला पोर्ट पर कुछ बहुत बड़ी योजनाएं शुरू की गई है। कांडला पोर्ट की वर्तमान क्षमता तो बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा 1400 एकड़ में स्मार्ट औद्योगिक सिटी का विकास किया जा रहा है। इससे लगभग 50,000 नए जॉब्स क्रिएट होंगे। 2 नई कार्गो जेटी और 1 ऑयल जेटी पर काम चल रहा है। विंड पावर प्रोजेक्ट और रूफ सोलर प्रोजेक्ट भी तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। नवंबर में, जब मैं नवंबर कहता हूं तो सबका ध्यान विशेष जाता है। दिवाली के बाद नवंबर में काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लिए गए फैसले के बाद न जाने ऐसे ऐसे झूठ फैलाए गए, ऐसी अफवाहें फैलाई गई, ऐसे भ्रम फैलाए गए, ऐसे आरोप लगाए गए कि अब सब तबाह हो जाएगा, अर्थतंत्र खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों को तो तकलीफ होनी थी, लेकिन पिछले क्वार्टर का जो रिपोर्ट आया है, पिछली तिमाही के जो आंकड़े हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि दिवाली के बाद हुई इस कार्रवाई का दुनिया के बड़े बड़े संगठनों और जानकारों ने समर्थन किया है। जीडीपी सोचने से सोचा गया इतनी कम होगी, इतनी कम होगी, कुछ नहीं हुआ। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है भैया। एप्पल के सीईओ मिस्टर टिम कुक ने कहा कि भारत के इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे और सकारात्मक होंगे। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने कहा कि यह फैसला पैरेलल इकोनॉमी को खत्म करेगा और अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाएगा। वर्ल्ड बैंक के सीईओ मैडम क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, उन्होंने कहा कि इस फैसले के समर्थन में थे। उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा और भारत ने जो किया है उसकी दुनिया के दूसरे देशों ने स्टडी करनी चाहिए। मलेशिया के प्रधानमंत्री श्रीमान नजीब रजाक, उन्होंने इस फैसले को बहुत ही साहसिक बताया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी इस फैसले का समर्थन किया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के हैं। उन्होंने कहा कि डिमोनेटाइजेशन से ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र एवं बैंकिंग सिस्टम के दायरे में आ जाने से उनके जीवन में एक बहुत बड़ी सुरक्षा का एहसास आएगा।
ब्रिटेन के प्रसिद्ध समाचार पत्र फाइनेंशियल टाइम्स के प्रमुख आर्थिक विषयों पर लिखने वाले और विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति हैं मिस्टर मार्टिन वुल्फ। उन्होंने लिखा कि इस फैसले से पूंजी अपराधियों के हाथ से निकलकर सरकार के पास आएगी और पूंजी के ऐसे हस्तांतरण से जिनको नुकसान हुआ उनके लिए कोई सहानुभूति होना मुश्किल है। दोस्तों, निश्चित तौर पर जब अर्थव्यवस्था से काला धन खत्म होगा तो इसका फायदा हर सेक्टर, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक, हर किसी को होगा। आज दुनिया भारत के इस साहसिक फैसले को बहुत सम्मान के साथ देख रही है। साथियों, आखिरी में मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहता हूं और यह है पर्यावरण की सुरक्षा। मैंने भी पहले भी कहा है, हमें परियोजनाओं का विस्तार करते हुए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाते हुए इस बात पर भी जोर देना है कि उसकी वजह से पर्यावरण का कोई नुकसान न हो। विकास और पर्यावरण एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। दुनिया के सामने विषय में डंके की चोट पर रखते आया हूं। विकास भी हो सकता है, पर्यावरण का विस्तार भी हो सकता है, पर्यावरण का लाभ भी हो सकता है। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ किसी तरह का समझौता हमने होने ही नहीं देना और प्रारंभ से नहीं होने देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जैसे दहेज का पूरा एनवायरनमेंट हर किसी के लिए फ्रेंडली है, वैसे ही दहेज SEZ भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगा ही। भाइयों बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे इस अवसर पर आने का मौका मिला, आप सबसे मिलने का अवसर मिला, इसलिए मुझे खुशी होना बहुत स्वाभाविक है। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आत्मीय एवं प्रोत्साहक शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। We would like to make this moment memorable by presenting mementos to the dignitaries on the dais. I request Shri Mansukh Bhai Mandavia, Union Minister of State, to kindly honor and felicitate Honorable Prime Minister Shri Modi ji with a memento. I request Shri K.D. Tripathi, Secretary, Department of PNG, Government of India, to kindly present a memento to Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Vijay Bhai Rupani. I request Shri Avinash Joshi, Managing Director, OPAL, to kindly felicitate Honorable Union Minister Shri Nitin Gadkari ji with a memento. I request Shri Avinash Joshi to also felicitate Honorable Union Minister of State Shri Mansukh Bhai Mandavia with a memento. Thank you very much. और अब रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, केमिकल एवं फर्टिलाइजर मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया से निवेदन है, आप आभार प्रदर्शित करें। आदरणीय श्री मनसुख भाई मांडविया। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट ओपाल का आज देश को समर्पित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हमारे सबके बीच में उपस्थित रहे, हमको प्रोत्साहित किया। उसके साथ हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विजय भाई रूपाणी और
केंद्र के मेरे सीनियर मिनिस्टर आदरणीय नितिन गडकरी जी के साथ सब ऑफिसर्स आज के अवसर पर उपस्थित रहे। सबको मैं ओपाल की ओर से खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आभार प्रदर्शित करने के लिए आदरणीय मंत्री श्री, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ भोपाल के परिसर में आयोजित ये समारंभ समाप्त होता है। आप सभी का फिर से एक बार आभार प्रदर्शित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री अब ओपाल प्लांट की विज़िट के लिए रवाना होंगे, उनके साथ सभी महानुभाव भी जाएंगे। ओपाल की ओर से फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार अस्तु।